Hello. New chapter is what? Magnetic effect of electric current or moving charge magnetism. Write down. Moving charge magnetism. Write down. Moving charge magnetism. Moving charge magnetism. Important chapter है. Easy chapter. Or magnetic effect of electric current. Same. Moving charge magnetism or magnetic effect of electric current. In moving charge magnetism, first we have to see force on a charge, force on a charge particle moving inside a magnetic field. Write down. Force on a charge particle, force on a charge particle, force on a charge particle moving inside a magnetic field, moving inside a magnetic field. Write down. Force on a charge particle moving inside सर a magnetic field. Hello. हाँ बोलो. Force on a charge particle moving inside a magnetic field. फिर तो से ये है force on a charge particle, force on a charge particle moving inside a magnetic field. Let's see this. A magnetic field is given. You see, magnetic field is written like this. Uniform magnetic field. देखो parallel line is uniform magnetic field. Totally what? It is parallel uniform magnetic field. This is what uniform magnetic field is given. Inside that a charged particle is moving. Inside this a charged particle is moving. Let q is a charged particle. Here let's say this is q is a charged particle that is moving inside the magnetic field, and the charged particle is moving what? By making an angle theta with the magnetic field. Along this direction it is moving. V is the velocity of the charged particle. V is the velocity of the charged particle, and this is what the magnetic field. Now, what is the direction of force? Angle between charged particle and magnetic field is theta. Theta is the angle. Then the magnetic force is given by Fm is equal Q into V cross B. Fm is equal Q into V cross B. Hello. This is what the magnetic force. Fm is equal Q into V cross B. Q into V cross B means what? अरे V तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, B ये डायरेक्शन में जा रहा है. राइट हैंड थंब रूल. V से B की तरफ कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा ना, वर्टिकली अपवर्ड. अरे समझ में आ रहा है? V इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है. V क्रॉस B करोगे राइट हैंड थंब रूल में. You have to keep your right hand on V vector, and you have to curl your fingers along the direction of B. Then the thumb gives about V cross B. This is what the direction of Fm. This is what the direction of Fm. Sir, And outside the plane. the plane, and the same plane you are going to get. B is the magnetic field. Udit, B is the magnetic field. This B is the magnetic field. D is the magnetic field. समझ में आ रहा है? And this force will be what? The force will be perpendicular to both of these fields. जैसे टॉर्क हम लोग निकाले थे. टॉर्क इज m क्रॉस b. व्हाट? टॉर्क में क्या था? p क्रॉस b था ना? P cross E. अरे p क्रॉस b था. ये पे exactly वैसे ही है. What? v क्रॉस b. And this is the magnetic force. Magnetic force is what? Perpendicular to both q and v. यहीं पे भी पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा? f and v and f and b. B is the magnetic field here. Draw the figure. Draw the figure. Draw the figure. यहीं से important थोड़ा concept सा बोलो. ऊपर. Yes, yes, बोलो. सर हेडिंग दिखाएंगे. Heading है moving charge magnetism. लिखो. Heading है moving charge magnetism. Force on a charge particle moving inside a magnetic field. पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद लिखेंगे. Sir, V is velocity. V is the velocity, Q is the charge. V is the velocity of the charge particle. Draw the And sir, diagram. B. B is the magnetic field. B is the magnetic field. Write down. B is the magnetic field. Sir, then Fm is. Fm is the magnetic force. I will explain everything. Just draw the diagram first. Only draw the diagram. Sir, drawn. Drawn. Write down. Let a charged particle. अरे ड्रॉ किए सभी. ड्रॉ कर दिए सभी. यस अरे सर. completed. Okay. Now write down.
let a charge particle q is moving, let a charge particle q is moving inside a uniform magnetic field b, inside a uniform magnetic field b, inside लिखो हेलो आनंदिता बोलो, आनंदिता एक और बार ओके। देखो अरे लेटली सब ज्वाइन किए ओके। देखो एक चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v along this direction and the angle between v and b is what, theta. Theta is the angle between velocity of the charged particle and magnetic field. Then the magnetic force on the charged particle, magnetic force कितना होगा निकालेंगे यहीं पे। लिखो तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दिए सभी, लिखो अभी। let a charge particle q, write down, let a charge particle q is moving inside a uniform magnetic field b, is inside moving inside a uniform magnetic field b with a velocity v, with a velocity v, moving inside a uniform magnetic field b with a velocity v, with a velocity v. The magnetic force on the charged particle is given by, write down, the magnetic force, the magnetic force on the charged particle, the magnetic force on the charged particle is given by, देखो the magnetic force on the charged particle is given by Fm is equal, क्या आएगा, Q into V cross B. Fm is equal Q into V cross B. Very important. Fm is equal Q into V cross B. अरे समझ में आ रहा है? Fm is equal Q into V cross B. Is that clear? अरे लिखा ना? Hello. Yes, sir. Fm is equal Q into V cross B. Now you see this. अरे समझ में कैसे जा रहा है Fm? सभी को पता चला ना Fm का डायरेक्शन कैसे जा रहा है? या बताओ फिर से? हेलो, अरे फिर से बताओ क्या? देखो वीडियो में देखो तो दिस इज व्हाट हियर। अरे ये मेरा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी q, ये मेरा b है, ये b है, ये v है। थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं मैं। देखो दिस इज व्हाट v, दिस इज व्हाट b, v क्रॉस b means fm vertically upward, fm is vertically upward means fm is what, fm will be along this direction। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये fm है तो fm is perpendicular to b as well as perpendicular to v, perpendicular to v, दोनों दोनों को perpendicular है। समझ में है? अरे समझ में है ना? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. इसको ये पूरा Yes, sir. फिगर में समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है वह। नाउ यू सी, नोट एक एक करके नोट लिखेंगे। लिखो नोट नंबर 1, इसमें नोट क्या है लिखो। नोट नंबर 1, फर्स्ट नोट, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कौन सा पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स? अरे पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर क्या है? अरे व्हाट आर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स? कौन कौन परपेंडिकुलर वेक्टर्स होगा पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स? द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर व्हाट? Fm is perpendicular to V and Fm is perpendicular to what? B. Fm is perpendicular to B. Both are pair of perpendicular vectors. Next, number 2, unit of B, unit of magnetic field B, यूनिट ऑफ बी अभी निकालेंगे। देखो इन एस आई, बिट ए में इन एस आई, एस आई में क्या होगा, एस एफ एम इज इक्वल क्यू भी बी साइन थीटा, सो बी इज इक्वल एफ एम बाय क्यू भी साइन थीटा। माई एफ एम इज 1 न्यूटन, q is 1 coulomb, 1 meter per second
एंड दिस इज व्हाट साइन 0, थीटा को मैंने 0 लूंगा, थीटा 0 मतलब क्या है, वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। अरे थीटा इज 0 मींस व्हाट, थीटा 0 मींस व्हाट, अरे थीटा 0 मींस क्या होगा, ये 0 हो Same जाएगा, direction. मतलब v एंड b आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। वाह, 90 लेंगे, सॉरी साइन 91 ना, अरे पे साइन 90 ना, सॉरी साइन 90, you have to take 90, sin 90 means what, अरे sin 90 is what 1 ना, परपेंडिकुलर लेंगे, नॉट 0, सॉरी, अरे 0 नहीं है, इसको 90 लिखो, sin 90, sin 90 is what, 90 डिग्री मतलब क्या, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वाह, या फिर डायग्राम अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो आई कैन ड्रॉ हियर, वेलोसिटी कैसे जा रहा है, वेलोसिटी ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, समझ में है कि नहीं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, sin 90 is 1, so what you will get here, you see that fm will be, b will be 1 what, 1, this is what Tesla, T, capital T stands what stands for Tesla, write down, this is Tesla. What is the definition of 1 Tesla, write down, unit of magnetic field is a Tesla, अरे वो 90 लिखो, 0 नहीं है, साइन 0 0 है ना, डेफिनेशन में 1 लिखना है तो साइन 90 लिखोगे, अरे जब डेफिनेशन लिखोगे 1 करोगे ना तो यहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है, 90, क्यू बी बी साइन 90, इसलिए साइन थीटा, इसलिए थीटा को 90 लिखोगे, क्रॉस So, प्रोडक्ट इज व्हाट, क्यू बी बी साइन थीटा। हाँ बोलो, बोलो आनंदिता, अरे बोलो, C cross. हाँ अच्छा समीक्षा बोलो, कौन बोल रहा था, क्या आनंदिता, हाँ बोलो, क्या बोलो, Just C cross. C सुनाई नहीं cross. दे रहे, सुनाई नहीं दे रहा आनंदिता, वॉइस कट रहा है, बोलो क्या पूछ रही थी, फिर से बोलो आनंदिता। Sir one and Sir C cross sin 90 से पहले. साइन 90 डेज, सी नहीं है, क्यू का, देखो क्यू का यूनिट है 1 कूलम, भी का इंटू लिखोगे, भी इज 1 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा, थीटा की जगह 90 लिखा, समझ में आया, क्यू का यूनिट है कूलम, भी का है मीटर Yes, पर sir. सेकेंड, थीटा इज अ 90 डिग्री, फोर्स का न्यूटन, ऐसा यूनिट में सब लिखा लिखा मैंने, हुआ, समझ में आया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज अ 1 टेस्ला, लिख दिए, अरे सभी लिख दिए, अरे Yes, कंप्लीटेड sir. ओके लिखो, now write down, thus magnetic field is the unit of magnetic field, write down, thus the unit of magnetic field is said to be 1 tesla, thus the unit of magnetic field is said to be 1 tesla, thus the unit of magnetic field is said to be 1 tesla, 1 tesla, if a magnetic force of 1 newton, if a magnetic force of 1 newton experience on a charged particle of 1 coulomb, experience on a charged particle, सर थोड़ा स्टार्टिंग से। starting से लिखो, the unit of magnetic field is said to be 1 tesla, the unit of magnetic field is said to be 1 tesla, 1 tesla, if a magnetic force of 1 newton, if a magnetic force of 1 newton, 1 newton experience on a charged particle of 1 coulomb, experienced on a charged particle of 1 coulomb moving with a velocity 1 meter per second, moving with a velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, moving with a velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, अरे लिखे ना, Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट CGS यूनिट में राइट डाउन, इन CGS यूनिट राइट डाउन,
in CGS unit. What is in CGS unit? You see, as Fm is equal QBB sin theta. अरे चैप्टर को ध्यान से सुनो, क्लास में अगर अटेंटिवली सुनोगे तो 90% ये चैप्टर हो जाता है। आगे जो चैप्टर सब है क्लास में अगर ध्यान से सुनोगे तो इजीली ये चैप्टर सब इजीली होगा, उसके बाद क्विकली प्रॉब्लम कर लो, और हार्ड नहीं है ये। क्लासरूम चैप्टर से ध्यान से सुनो तो 90% हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लो, ऐसा लो रहा टेक्स्ट बुक का काम खत्म, ये सब चैप्टर आगे जो चैप्टर रहेगा अभी ये चैप्टर है ना आगे हुआ, इसलिए ध्यान से सुनो। एफ एम इज क्यूबीबी साइन थीटा, तो बी इज इक्वल व्हाट इज दैट एफ एम बाय क्यू बी साइन थीटा। तो ये वन डाइन है, फोर्स क्या है वन डाइन है, चार्ज है वन स्टार्ट कूलम, भी क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू साइन 90, 1 तो साइन 90 है, तो ये आएगा 1 गॉस, कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर गॉस। तो CGS में 1 गॉस है एंड SI में 1 टेस्ला है। राइट डाउन 1 गॉस का डेफिनेशन क्या है, लिखो। लिख दिए? कंप्लीटेड? Yes, sir. लिखो, thus the unit of magnetic field is said to be 1 gauss. Thus the unit of magnetic field is said to be 1 gauss. The unit of magnetic field is said to be 1 gauss. 1 gauss if a magnetic force of one dyne, if a magnetic force of one dyne experienced on a charged particle of 1 start coulomb, experienced on a charged particle of 1 start coulomb moving with a velocity 1 centimeter per second, moving with a velocity 1 centimeter per second perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field। अरे लिख दिया ना? completed। now dimension of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? देखो डायमेंशन इसी फॉर्मूला से ही निकल जाएगा, FM इज योर QB Sir, sin theta, perpendicular to the magnetic perpendicular field. to the magnetic field, yes, perpendicular to the magnetic field। तो B is equal FM by QB sin theta। FM का डायमेंशन है M1 L1 T minus 2, Q का क्या है Q is your A1 T1, वेलोसिटी L1 T minus 1, sin थीटा का डायमेंशन क्या है स्पंदन? अरे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ sin थीटा? Sir, dimensionless. डायमेंशनलेस, वेरी गुड, पढ़ाई हो रहा है उसका मतलब, वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट इफ विल राइट हियर M1 कितना आएगा बोलो, L1 गेटिंग कैंसल्स आउट, तो M1 L0 T minus 2 A minus 1, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब डायमेंशन ही एंट्रेंस में गिरता है, 12 क्लास का जितना है सब गिरेगा, 11 क्लास का जितना सेकंड बुक का वो डायमेंशन गिरता है। M1 L0 T minus 2 A minus 1, magnetic field dimension only can be find out by easily by this formula, easily, clear? Now the most important thing, let's see, लिखो motion of a charged particle, heading लिखो, बहुत ही important heading, motion of a charged particle, motion of a charged particle inside a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें निकालेंगे बहुत सारे केसेस, हुआ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो केस 1, फर्स्ट केस लिखेंगे। कोई कुछ पूछ रहा था? हेलो, Yes. हाँ बोलो, अभिषेकता बोलो। सर वहाँ
पहले पेज पे जो डायग्राम किए थे वो राइट हैंड रूल आप कैसे अप्लाई किए वो पता नहीं चला। पता नहीं चला। ओके ओके ओके, चलो। अरे वेक्टर भूल गया क्या अभी सीखता? वेक्टर भूल गए? सर हैं? वो रूल याद है? देखो, ये मेरा भी है, ये ब्लैक कर लेते हैं इसको। ये मेरा बी है, ब्लैक दिखाई दे रहा है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो? ये प्रॉब्लम हो रहा है? ब्लैक यस वाला सर दिखाई दे। बी है, ब्लैक वाला बी है, ये भी है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये वाला वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये बी है। तो v क्रॉस बी मतलब v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया, v क्रॉस बी। तो मेरा फोर्स क्या है? फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? ये फोर्स का डायरेक्शन हुआ कि नहीं? समझ में? यस ये सर। मेरा भी है, ये मेरा भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ब्लैक वाला देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में? तो v क्रॉस बी, भी में हाथ रखा, v क्रॉस बी की तरफ घुमाया, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अभी समझ में आया? हेलो? यस तो इसलिए इसी में क्या हो रहा है, ये मेरा क्या है? ये मेरा v है, ये मेरा b है, ये v है। v मतलब ऐसे व्हाट, प्लेन से निकल के आता है v, हुआ कि नहीं? एंड b ये प्लेन में है, तो v क्रॉस b करोगे तो fm होगा ना? समझ में? अभी सीखता? हेलो? यस सर। बस, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है। देखो, ये स्ट्रेट प्रॉब्लम में गिरता है ये कॉन्सेप्ट। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, केस 1। लिखो, ध्यान से सुनो ये सब। केस 1, सो मत जाना, ध्यान से सुनो। केस 1, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। समझ में? मतलब फिगर में कैसे मूवमेंट करेगा? अरे भी इधर ना जाके, भी अभी इधर जाएगा भी, ये v होगा, ये b होगा। समझ में है कि नहीं? सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? देन राइट डाउन, देन Fm इज इक्वल q इंटू v क्रॉस b। तो दिस इज व्हाट, Fm इज इक्वल q v साइन 0। साइन 0 कितना है? 0 है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज 0 मीन्स व्हाट? लिखो पहले, फोर्स इज 0 मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। राइट डाउन, लिखो इसको पहले। लिख दिया? अरे लिख दिए सभी? Yes, sir. Yes, sir. That means what? If a charge particle is moving along the magnetic field, magnetic force is 0 means if the charge particle is at rest, it will remain at rest. अगर charge particle को ऐसे छोड़ दिया, magnetic field के अंदर ऐसे छोड़ दिया, तो it will remain at rest. And if the charge particle is moving, it will continue that motion along the same straight line with same velocity, continue its motion with the same velocity because Fm is 0. बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल को रखोगे ऐसे क्यू, तो क्या होगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मूवमेंट करेगा। क्यों? इसके ऊपर फोर्स है F इज इक्वल क्यू ई। अगर रेस्ट में है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डेफिनेटली इट विल मूव। बट इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रिमेन एट रेस्ट। क्यों? बिकॉज Fm इज 0। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। अरे समझ में आया? If you are placing the charge particle, if you are placing the charge particle inside the electric field, the force is F equal to QE. Therefore, no more the charge particle is at rest; it will move along the same straight line. Clear? If a charge particle you are placing means B equal to 0. If B is equal 0, what will happen here? B equal to 0 means it will remain at rest. ये कभी मूवमेंट नहीं करेगा। If the charge particle is moving along the same straight line, that of magnetic field, magnetic force is 0, therefore it continue to move along the same straight line. मतलब ये inertia हो गया। Inertia means what? If the body is at rest, it will remain at rest, and if it is in motion, it will continue that motion. Inertia means net force is 0, तो inertia हो गया ना ये। अरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल will behave like inertia. Understand this or not? समझ में है सभी को? सर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स देंगे हमें।
एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है यहीं पे। अरे क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है। इसलिए नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर मींस व्हाट, इट विल बिहेव लाइक इनर्शिया। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया हो गया ना। अरे if the charge Yes, sir. particle is at rest, it will remain at rest, and if the charge particle is moving with velocity v, it will continue that motion along the same straight line with same velocity. समझ में आ रहा है? ये सब important questions है, लिखो। Write down, when the charge particle is moving along the direction of magnetic field, when the charge particle is moving along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, magnetic force is zero. Magnetic force is zero So moving along. along the direction of magnetic field. Along the direction of magnetic field. So magnetic force is zero. Magnetic force is zero. Hence the charge particle continue to move along the same straight line. Hence the charge particle continue to move. Charge particle continue to move along the same straight line. Charge particle continue to move along the same straight line. Along the same straight line. Now, case 2. Case 2. When theta is 180 degree. 180 means मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज पार्टिकलों मैंने प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, बी एंगल इज 180 डिग्री, तो क्या होगा? अरे थीटा 180 डिग्री है। देन व्हाट विल हैपन, लिखो, देन Fm is equal QBB sin 180. Sin 180 is what? Again zero, मतलब ये भी zero आ रहा है। Means if you are projecting along the magnetic field or against the magnetic field, magnetic force is zero. If you are projecting the charge particle along the direction of magnetic field or against the magnetic field, always magnetic force is zero. Magnetic force zero means what? If the charge particle is at rest, it will remain at rest, and if it is in motion, it will continue that motion. समझ में आ रहा है? केस 1 जो मिला, केस 2 वही मिला। लिखो, राइट डाउन। ड्रॉ कर दिए? Yes, sir. अरे ड्रॉ करना, लिखो, if the charge particle is moving against the magnetic field, if the charge particle is moving against the magnetic field, if the charge particle is moving against the magnetic field, then also the magnetic force is zero. Then also the magnetic force is zero. Clear? Now case 3 is very important. देखो, केस 3, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है केस 3 में, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब है केस 3 में। राइट डाउन, केस 3 is very very important. Case 3 is what? When theta is 90 degree, what will happen? When theta is 90 degree, what will happen? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सब ध्यान से सुनो, जरा सब ध्यान से सुनो। When theta is 90 degree, सब ध्यान से सुनो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा टू टाइप्स में। एक है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस मतलब इनटू द पेज जाएगा, एंड डॉट मतलब आउट ऑफ द पेज होगा। समझ में? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मींस इनटू द पेज, पेज है, पेज के अंदर जाएगा। देखो, थोड़ा वीडियो देखो, यहाँ पे पूरा वीडियो की जरूरत है। ये मेरा पेज है, अरे ये मेरा पेज है, सब मोटा मोटा बुक है, ओके। अरे ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है, देखो पेज है जो लिख रहा हूँ, इनटू द पेज मतलब क्रॉस, ये क्रॉस मतलब इनटू द पेज, डॉट मतलब आउट ऑफ द पेज, पेज से निकलेगा मतलब डॉट है। मैग्नेटिक फील्ड अगर पेज से निकल रहा है, पेज से निकल रहा है
डॉट मतलब पेज से व्हाट, डॉट मतलब पेज से निकल रहा है, पेज से ऐसे निकल रहा है डॉट। क्रॉस मतलब इनटू द पेज जाएगा, पेज के अंदर जाएगा वो क्रॉस होगा, पेज से निकलेगा वो डॉट होगा। अंडरस्टैंड दिस? समझ में है कि नहीं? तो मैं जब ये क्रॉस लिख रहा हूं, डायरेक्शन इज व्हाट, डायरेक्शन इज व्हाट, डायरेक्शन इज व्हाट इनटू द पेज। डॉट मतलब पेज से बाहर। अगर मैं इसको एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, दिस इज व्हाट जेड एक्सिस। इनटू द पेज, इनटू द पेज मतलब क्या है? माइनस के क्या? अरे इनटू द पेज मतलब क्या है? पेज के अंदर जा रहा है, मतलब माइनस के क्या अपना? आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज मतलब ये, आउट ऑफ द पेज मतलब ये, मतलब दिस इज व्हाट के क्या, आउट ऑफ द पेज मतलब के क्या। अरे समझ में? इनटू द पेज मतलब, इनटू द पेज मतलब माइनस के क्या, एंड आउट ऑफ द पेज मतलब व्हाट इज दैट के क्या। समझ में है सभी? सभी को समझ में है? अरे क्रॉस मतलब ये पूरा अंदर जा रहा है, देखो क्रॉस मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा अंदर जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है। आउट ऑफ द पेज मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेज से बाहर के निकल रहा है, दैट इज द डायरेक्शन। हो गया क्लियर? अभी देखो 90 डिग्री क्या होगा, हाउ टू फाइंड आउट दिस 90 डिग्री मैग्नेटिक फोर्स। मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है? अरे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है? हेलो, into the into into the the paper. page, into the page and perpendicular to the page, 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 page मतलब पेज, कॉपी का पेज है। हुआ? into the plane of the paper जा रहा है। हुआ? now I am projecting a charge particle like this with velocity v, what will happen? ऐसे में प्रोजेक्ट किया चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सुनो। जस्ट आई एम प्रोजेक्टिंग द चार्ज पार्टिकल लाइक दिस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट इनटू द पेज, इनटू द पेज जा रहा है। आई एम जस्ट प्रोजेक्टिंग द चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v। अभी देखो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। यहीं पे देखो, अरे मेरा वीडियो को कहाँ गया? ओके देखो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रहा है, वह तुम्हारे तरफ जा रहा है। अरे स्क्रीन से निकल रहा है, स्क्रीन से निकल रहा है, ये स्क्रीन से पूरा निकल रहा है। देखो ये ऐसे बी, ये भी है, ये भी प्रोजेक्ट किया। नाउ वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी मतलब क्या है? ये भी है, ये बी है, बी में हाथ रखा, बी के तरफ घुमाया, तो ये मेरा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स नीचे जा रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, नीचे जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हेलो, अरे ये नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये बी है, ये मेरा v है। yes sir b is into the pace and v is along this one, v क्रॉस b, b में हाथ रखा, b के तरफ घुमाया, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे, एग्जैक्टली नीचे है मैग्नेटिक फोर्स। नीचे मतलब मैग्नेटिक फोर्स कैसे दिखाऊं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगा, मैग्नेटिक फोर्स सब देखो, वीडियो भी देखो, फिगर भी देखो। नाउ when the charge particle is moving perpendicular to the magnetic perpendicular to the force, क्या होगा? no more the charge particle is moving in a straight line but it will move in a circular path, है कि नहीं? अरे तुम लोग चार्ज एक बॉडी को परपेंडिकुलर दे रहे हो फोर्स, एक बॉडी को परपेंडिकुलर दे रहे हो फोर्स, हाउ दैट व्हाट द चार्ज पार्टिकल विल मूव, द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, है कि नहीं? अरे परपेंडिकुलर फोर्स उसको मिल रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर मिल रहा है, therefore it will move in a circular path, therefore the charge particle now will move in a circular path, no more it will move in a straight path but in a circular path। यहीं पे भी क्या होगा देखो, यहीं पे भी एग्जैक्टली v तो यहीं पे, v तो अगेन टेंजेंशियल टू दिस वन, v का डायरेक्शन ऐसा होगा, b तो इनटू द पेज है, मतलब एग्जैक्टली यहीं पे जब आएगा वेलोसिटी ऐसा है, देखो ऐसा वेलोसिटी है, वेलोसिटी नीचे है, अरे वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, दिखाई दे रहा है ना? वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज मतलब इनटू द पेज है, ऐसा है। तो v क्रॉस b, v में हाथ रखा राइट हैंड एंड b के तरफ घुमाया, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे जा रहा है, फिर परपेंडिकुलर हो रहा है। यहीं पे भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? यहीं पे भी मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है, ऐसे हो रहा है fm। समझ में? मतलब परपेंडिकुलर है। नाउ नो मोर इट विल मूव इन ए स्ट्रेट पाथ but again it will move in a curve path, ये curve path में फिर जाएगा, again it will move in a curve path, you see the charge particle will move in a curve path। यहीं पे भी क्या होगा? यहीं पे भी velocity of the charge particle is v हुआ, and यहीं पे नीचे आ गया, नीचे देखो ऐसा आ गया, velocity v, ये velocity v है, ये magnetic field है, into the page जा रहा है, v क्रॉस b क्या होगा? अरे v में हाथ रखा, क्रॉस किया, फिर क्या हुआ? अरे v इधर है,
व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, तो फोर्स क्या होगा, फिर ऊपर होगा ना, मींस फोर्स इज अगेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फिर Fm ऐसे हुआ। नाउ द चार्ज पार्टिकल इज अगेन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, यहीं पे भी क्या होगा, अरे देखो यहीं पे क्या होगा, ये V इधर है, V इधर है एंड B इनटू द पेज है, ऐसे घूम के आ गया, ऐसे घूम के आ गया, देखो ये मेरा V है, ये मेरा B है, तो V क्रॉस B अगेन फोर्स इधर है, इधर आ रहा है, तो therefore again the force will be along this direction, the force will be along this direction and ultimately it will come to the original position। अरे तो फिर कैसे मूवमेंट हुआ, अरे मूवमेंट कैसे हुआ बोलो, हाउ द मूवमेंट, यू आर प्रोजेक्टिंग द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अरे तुम तो प्रोजेक्ट कर दिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे मूवमेंट किया, अरे कैसे मूवमेंट किया, हेलो, अरे कैसे मूवमेंट किया, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, अरे समझ में, यू आर प्रोजेक्टिंग द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बट इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, समझ में है, हेलो, अरे क्यों सर्कुलर पाथ में मूवमेंट किया, समझ में है, प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा यस, अरे ये सर्कुलर पाथ है, ये समझ में है कि नहीं, हो गया, सर्कल बनाओगे, अरे डू यू फॉलो दिस और नॉट, किसका डाउट है बोलो ये, and the direction of force is always perpendicular anywhere, this is always perpendicular to the magnetic perpendicular to the velocity of the charge particle and the force is always directed towards the center, therefore the magnetic force gives the necessary centripetal force, the magnetic force gives the necessary centripetal force, अरे समझ में आया, understand this, अरे सभी को समझ में आया, Yes. हेलो, बस ड्रॉ करो डायग्राम, पूरा डायग्राम को देखो अच्छी तरह समझो, मैं कैसे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहा हूँ उसको पूरा विजुअलाइज करो, अगर समझ में नहीं है तो बार बार पूछो, हुआ, ड्रॉ करो अभी।